आने वाले दिनों के अंदर अगर FIR 2-3 दिन के अंदर नहीं होता तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि FIR लीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि जो कल्प्रिट है, एक्यूज्ड है, वो भागे नहीं। Where is the government right now? इलेक्शन के टाइम पे everyone comes to Catholic community, please vote for us, please this, please that. Right now when we need people's help, when we need the government to stand by us, when we need police to stand by us, there is no support that is given. So our question is, why is Kanakya police station not filing their FIR till now? Why is it not registered? People from EOW and all economic offence wing are saying we are ready to take action, but there is no FIR that is registered right now. And मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से इस न्यूज में खास करके अपील है कि इन इन्वेस्टर का दुख समझते हुए जल्द से जल्द उस पे जो है कार्रवाई की जाए और उसके प्रॉपर्टी को सीज की जाए ताकि वो इन फ्यूचर इनको उनका पैसा वापस मिल सके। जय हिंद दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं मलाइका कोऑपरेटिव सोसाइटी करके है जिसकी न्यूज कर रहा हूं मैं। इसके पहले भी मैंने 2 न्यूज की थी और आज भी यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। वो लोग अलग थे, ये लोग अलग हैं और कहीं ना कहीं ये देख करके मुझे लगता है कि 150-200 लोग होंगे करीबन यहाँ पे। 150-200 लोग हैं, यानी कितनी बड़े मात्रा में ये स्कैम हुआ है। वो जो बताया जा रहा है कि 350 करोड़, ये बिल्कुल ट्रू है। और वो न्यूज देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे मैंगलोर से भी कांटेक्ट किया था और उन्होंने बोला था कि कमोबेश मैंगलोर में भी वही हाल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब के सब इन्वेस्टर है। किसी का 10 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 20 लाख है। अब इसमें हो ये रहा है कि अगर पिछले 4 दिन से न्यूज हो रहा है, 2 दिन से पुलिस स्टेशन में अगर सबका जो है स्टेटमेंट लिया जा रहा है तो अभी तक FIR नहीं हुआ है। जैसा इन लोगों में से कुछ लोगों ने बताया कि अभी तक FIR नहीं हुआ। ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि ये करोड़ों का मामला है। इस पर बहुत जल्दी संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो बाकी कंपनियों की तरह इसका भी ये हाल होगा। क्या कहोगे रशल, किस तरह का परेशानी फेस करना पड़ रहा है तुमको? Sir, actually we only know the halat that we are going through because from so many months every time you have to stand in line and then after that वो लोग बोलते हैं come after 1 month टोकन देके फिर 5000 and now also there are so many people amongst us who are suffering from different kind of diseases and they need money. Many of them have saved for their retirement funds and all that, but अभी तक वो लोग को they are not getting the money that is required. So because of that we put up a message that we also know there's another group that is fighting for it, but then many of them were asking us please provide guidance, please provide this. So our question is, why is Kanakya police station not filing their FIR till now? Why is it not registered? People from EOW and all economic offence wing are saying we are ready to take action, but there is no FIR that is registered right now. And also we thought we will accumulate the people. We have everyone from different communities, majority Catholics who need their money. They are afraid that what if the owner runs away? What if he flies away? What if he doesn't? Because the passport is not seized, as we got to know. So because of that we are demanding action. Where is the government right now? इलेक्शन के टाइम पे everyone comes to Catholic community, please vote for us, please this, please that. Right now when we need people's help, when we need the government to stand by us, when we need police to stand by us, there is no support that is given. According to what we got to know, police are calling them in the police station and for 4 hours they are sitting, 5 hours they are sitting and all that. It means basically harassment of the people. While as the person who has done a 350 crore jumla is just roaming around everywhere freely. So we demand and we think that we'll form a committee, we'll go to directly the SP sir who is newly appointed or the 2 commissioner of polices who are there for Mira Bainder, and we will demand immediate action so that at least his passport is seized and as quick as possible an FIR is made on him. Thank you sir. दोस्तों, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस पे क्विक एक्शन होना चाहिए। आप का कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो अमाउंट 1,30,000 है, बट आई फील मेरे से ज़्यादा किसी का 5 लाख, 20 लाख, 41 लाख ये सब है। मेरा सिर्फ इतना था कि मुझे ये अमाउंट मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए था, जो हैंडीकैप है, उनको फिट्स का प्रॉब्लम था। उनका ट्रीटमेंट के लिए मुझे वो पैसे नहीं मिला और हाल ही में वो गुजर गए 3 महीने पहले। इतना है इन शॉर्ट कि ये बंदे को कुछ पड़ा नहीं है। ये बंदा अपना पैसा तो अपने पास रख के अपना लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन जो लोग बीमारी की वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, अल्टीमेटली जिनकी मौत हो रही है, अभी जैसे मेरे भाई का हुआ, मेरे से ज़्यादा तो कितने लोगों की और तकलीफें हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट आप प्लीज़ आके खोलो और हमारा पैसा एटलीस्ट जितना भी हो सके एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके तो देना चालू करो आप। चलिए, बड़ी रकम की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे रकम लाख, मैंने इसके पहले 1 लाख रुपए का भी दिखाया था, वो भी नहीं। आपका कितना जमा है? मेरा 4 लाख 4,20,000। आपको भी वापस नहीं मिला? नहीं, कुछ कब भी। से आप धक्के खा रहे हो? मेरा ड्यू भी होगा। मैं अभी 7 महीने से धक्के खा रहे हूँ।
7 महीने 7 से। महीने से। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नहीं नहीं कोई कुछ नहीं। आपने पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया है इसके पहले? हाँ हम लोग गए लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं, कोई नहीं, एक्शन कोई नहीं नहीं। हुआ है। ये बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे सादिक जी अगर इस पूरे सिनारियो को देखा जाए तो? देखिए वही बात है कि अभी मीरा भाईंदर के अंदर इस तरीके के बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले जो हो रहे हैं। सवाल ये है कि घोटाला तो हो रहा है बट उसको लेकर इतने सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पुलिस हैं, पॉलिटिकल क्लासेस हैं, पर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? 7 दिन हो गया है अभी तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ साठगांठ है जिसकी वजह से एफआईआर नहीं हो रहा। तो आज जो मीटिंग हुई इसका यही डिमांड है कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। अगर एफआईआर नहीं होता तो ये कोविड के नाम पर लोगों की जनवादी राइट जो है मतलब जमा नहीं हो सकते। ये जो बातें पुलिस प्रशासन कह रहा है इसको नकार कर आने वाले दिनों के अंदर अगर एफआईआर 2-3 दिन के अंदर नहीं होता तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि एफआईआर लीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि जो कल्प्रिट है, एक्यूज्ड है, वो भागे नहीं। अगर वो भाग जाता है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस प्रशासन को लेनी पड़ेगी। ये सीधे तौर पर जो एसोसिएशन यहाँ पर बन रहा है उसकी ओर से मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने कनकिया पुलिस स्टेशन के पास 2 न्यूज की है। वहां भी जो इन्वेस्टर आए थे, किसी के लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 1 करोड़, कोई सीनियर सिटीजन, बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन। इसके बाद जो है पुलिस ने कहीं ना कहीं ये एश्योर जरूर किया था कि हम वो स्टेटमेंट ले रहे हैं और स्टेटमेंट लेने के बाद जो है उसको हम ईओडब्ल्यू या एसपी सर के पास भेजेंगे अगर करोड़ से ज्यादा का मामला आता है तो। मुझे जहां तक खबर है कि ये एफआईआर कल तक हो जानी चाहिए, यानी कि सैटरडे तक हो जानी चाहिए। अगर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है। और आज फिर अगर ये लोग इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो उनका मकसद यही है कि एफआईआर में अगर जल्दी नहीं हुआ तो जो इसका मेन एक्यूज्ड है वो भाग सकता है, वो बाहर जा सकता है। अगर भाग गया वो अपने प्रॉपर्टीज को वो सेल आउट कर देता है या उसको इधर उधर कर देता है तो फिर इन डिपॉजिटर्स का पैसा कैसे मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से इस न्यूज में खास करके अपील है कि इन इन्वेस्टर का दुख समझते हुए जल्द से जल्द उस पे जो है कार्रवाई की जाए और उसके प्रॉपर्टी को सीज की जाए ताकि वो इन फ्यूचर इनको उनका पैसा वापस मिल सके। थैंक यू सो मच।